Alright guys, this is the. My name is Nikhil and you're watching. Oye, गलत cut. Good morning, good evening, ladies and gentlemen. नमस्कार. My name is Nikhil and this time we have someone special. क्योंकि कैमरा एडजस्टमेंट करने में हमें 20 मिनट लगे और उन्होंने 5 मिनट बाद में हमें रैप अप करा के कहा कि नहीं ये बेटर होगा, तो हमारा वो बेटर हुआ. As he is a filmmaker himself, as a director himself, Sir Eddie Singh. I am using the word sir because I personally envy cameras and I can look forward to learn a lot from him. He has an experience of 25 years in the industry, films, commercial films. You talk about short movies and a commercial film that got released this year with the name called मोदी जी की बेटी. Did pretty well on the box office and I said हम उसके बारे में बात करते हैं. He said that वो तो हो गया पुराना. Let's talk something new that would be something better for the generation. That is something upcoming and मुझे बहुत excite किया वो चीज. So here we are. Well, thank you so much for having me here, Nikhil. And I'm sure we're going to have some sorted questions and answers here. So, yeah, already all yours. I love the word आपने sorted use किया क्योंकि मैं जान के ना टाइटल मैंने ऐसे दिया कि sorted talks की बैठ के आराम से शांति से बात करते हैं कि चीजें अच्छी हों. Sir, I always wanted to know कि ना when you work on the commercial side or film industry side पे there is this life behind the camera. There are a lot of things that happen behind the camera. आप जो दिखाना चाहते हैं कैमरे पे वो अलग चीज दिखती है, पर्दा दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, बट अभी यहाँ पर how would you describe, कोई जैसे न्यूबी बैठ के देख रहा है मेरे साथ, उसको नहीं पता what is the life behind the camera, what it takes to deliver something, what is it? Okay, I'll have to go a little back with how I can answer you. Okay. My point is that I've been an ad filmmaker firstly. Okay? And just did my feature film recently which you just spoke about. So there is a different world. एक जो audience है जो सामने है, एक जो पर्दे के पीछे से सब कुछ कर रहा है और आपके लिए पेश कर रहा है. Right. तो you know जो देख रहे हैं उनके लिए एक perception हमेशा रहा है. वो perception ये है यार क्या बना दिया, या अरे क्या था. And it's a not even a 2 minutes, a 10-second statement. But वो अगर एक commercial है 30 second की या 2 घंटे की, पौने 2 घंटे की एक feature film है या कुछ है, उसके पीछे क्या क्या होता है और क्या जाता है. Trust me, it's not easy. It's complete synchronization and synergy of a whole lot many people. If you have that team and you have the synergies, then things become easy and they become well synchronized. So I would say that synchronization is very important. Right from the spot boy to your DOP, that synchronization is very important. जिसको हम बोलते हैं ना आंख का इशारा. Right. वो चलता है स्क्रीन के पीछे, कैमरा के पीछे. I think yeah, if any team has that spirit, it works and you then are able to deliver what you want to deliver. आपने ना एक वर्ड यूज किया सिनर्जी, ठीक है. डज इट टेक कि एक जो पीछे डायरेक्टर है दैट ही हैज टू बी अ मैनेजर गाय हिमसेल्फ, बिकॉज वो सिनर्जी बिल्डअप करना दैट ही हैज टू एनरोल इट विद हिज विजन. तो स्पॉट दादा क्या कर रहे हैं, मेकअप आर्टिस्ट उस टाइप का मेकअप कर रहा है जैसा आपको चाहिए. अब यू गेटिंग माय पॉइंट. हाँ, तो वो एक मैनेजमेंट का काम है. तो यू हैव टू बी अ मैनेजर रादर देन अ विजनरी. विजनरी क्या होता है कि मैंने बताया कि यार ये कर देंगे. See, the toughest job always of the director, no doubt about that. And thankfully, I guess that's why we directors are called captain of the ship. तो हालांकि मेरी नजर में कैप्टन ऑफ द शिप जो है वो बेचारा प्रोड्यूसर होता है. Okay. Because eventually it's his money that we are spending. Right. But yes, the synergy is very essential, like you say. अब होता क्या है कि I think मैनेजर जो है वो तो डेफिनेटली आपको होना है. अब ये कोई operations नहीं है सिर्फ. There is a complete knowledge of production. A director has to have a thorough knowledge of production for sure. आपका स्पॉट बॉय आपको बेवकूफ बना के जा सकता है किसी भी टाइम और आपको पता नहीं चलेगा. तो the idea is that you should have absolute clarity of आपके सेट पे क्या हो रहा है, वो सब सही चल रहा है या नहीं चल रहा है. Then essentially you have to have your pre-production work thorough. Okay. तो if your pre-production work is thorough, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ. आपको आपका प्रोडक्शन मैनेजर लास्ट मिनट पे एक सुई धागे के लिए वो आपको 10,000 रुपए की कॉस्ट कर सकती है. Okay. Why? Because आपने एक सीन रखा है अपनी स्क्रिप्ट के अंदर, माँ सुई धागे से एक रफू कर रही है फॉर एग्जाम्पल. तो ये सीन था, लेकिन आपने अपनी प्रोडक्शन लिस्ट में ये सोच लिया कि मेरे प्रोडक्शन मैनेजर की इंटेलिजेंस इतनी है कि वो सीन है तो वो सुई धागा लेके आएगा. आपको सेट पे प्रोडक्शन मैनेजर कहता है आपने तो लिखा नहीं था सर, अब लाऊं क्या. वो 2 घंटे में लेके आएगा और आपको कहेगा सर 10,000 रुपए लग गए. तो दैट इज वेयर योर इंटेलिजेंस इज प्री प्रोडक्शन. और अगर कोई अच्छा अकलमंद प्रोडक्शन है, ये सब प्रोडक्शन मैनेजर्स के लिए बहुत जरूरी है. सुई धागा पहले से ही रख लेना. Okay. Things like that, yes, they happen.
That's the cost that sometimes people have to pay. तो जो टीनेजर्स हैं आजकल के, दे हैव फैंटेसीज ऑफ कैमरास, शॉर्ट फिल्म शूट कर रहे हैं, और आजकल ऐसा प्लेटफॉर्म आ गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, वहाँ पे यू कैन शूट योर थिंग्स एंड इजीली बना के शोकेस कर सकते हैं, यूट्यूब पे अपनी वीडियोस डाल देते हैं. हाउ वुड यू से कि किसी को कमर्शियल इंडस्ट्री में आना है जहाँ पर मनी इन्वॉल्व है, लॉट ऑफ प्रोफेशनलिज्म इन्वॉल्व है, व्हाट इज द डोरवे, मतलब कैसे स्टेप चढ़े कोई? निखिल, ट्रस्ट मी कि ये आजकल के टीनेजर्स की फैंटेसी नहीं है. ये मैं जब टीनेजर था तब भी आई वाज लिविंग विद दिस ड्रीम. सो दैट इज व्हाई वी कॉल दिस शोबिज. Okay. And the show must never stop. And it is firstly most importantly that if you have a dream and if you want to get into the entertainment industry, you want to become a filmmaker, irrespective what department you want to do. So the first most essential thing will be make sure you do it thoroughly. Okay. And to do that thoroughly, it's not book work. It's not theory. It has to be practical for sure. I've been to film school, but trust me, वो film school का पीछे रह गया यार. जब practical environment में आते हैं ना, तो चीजें बहुत चेंज होती हैं. तो मैं अपने घर के किचन में बहुत अच्छा खाना बना लेता हूँ, but no, जब मैं एक रेस्टोरेंट में जाता हूँ या एक होटल में जाके खाता हूँ, तो उसका फ्लेवर और उसको एप्रिसिएशन जो करता हूँ वो अलग है. दैट इज बिकॉज इट्स ऑल्सो हैविंग प्रेजेंटेशन. नाउ फॉर ऑल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, वन थिंग is very essential for all the youngsters who want to come into the industry. That is, you have to be passion driven. Passion नहीं है ना दोस्त, तो इस इंडस्ट्री में सोचो मत आने की. MBA कर लो, कुछ और कर लो, पर इस इंडस्ट्री के अंदर आने के लिए पैशन होना चाहिए. आज भी मैं 30-year-old young. Okay. Because I still have that passion with me and I live with it and I love it. So the logic is, what does that passion do with you? You're going to have a lot of ups and downs in this thing. Don't get disheartened. Keep yourself in the motivated mood. Drive yourself against all odds and you'll be there. Trust me, you will be there. It's just passion. It's passion. Firstly, it's passion. मैंने ये आंसर नहीं सोचा था. मेरे को सोचा था आप कहोगे कि ऐसा हो, बट आई नेवर थॉट कि हम पैशन के ऊपर इतना. तुमने सोचा था कि मैं बोलूंगा फिल्म स्कूल बहुत जरूरी है. आई एक्चुअली थॉट दैट कि यू हैव टू बी रिनाउंड फ्रॉम, जैसे एमबीए में होता है, अरे वो एक्सेलर आए का यार, वो एफएमएस का है. फिल्म स्कूल बहुत जरूरी है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं है, मैं भी गया हूँ फिल्म स्कूल में, बट जैसे मैंने कहा वो थ्योरी. ओके. इट मे बिल्ड यू टेक्निकली साउंड इन थ्योरी. इट मे टेल यू कि हाँ किस चीज को कैसे डील करना है, लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन वो तब होती है जब आप सेट पे हैं, उसको सोल्यूशन निकालना. जैसा आपने अभी मैनेजर के लिए पूछा था कि हाउ गुड अ मैनेजर आर यू, तो हाउ गुड इज अ मैनेजर और अ डायरेक्टर ऑन द सेट is far more important. How does he do the crisis management? वो चीज जो है वो आपको फिल्म स्कूल नहीं सिखाएगा, वो आपको खुद ही सीखना पड़ेगा. वो आपका IQ लेवल होगा, वो आपका इनोवेटिव आइडिया होगा, और अगर आप क्रिएटिव हैं और इनोवेटिव हैं तो इट विल वर्क फॉर यू ऑलवेज. आई डोंट नो, आई होप आई एम गिविंग यू द राइट काइंड ऑफ सॉल्यूशंस व्हिच आई थिंक माय यंगस्टर्स एंड पीपल हु वांट टू कम इनटू द इंडस्ट्री, दे शुड बी वेल अवेयर ऑफ दिस. Okay. Sir, you have been, I'll call it, you have tasted the flavors of two, मतलब जैसे international जो film industry है, as well as Indian film industry. What do you think? कौन सी बेटर है? You have worked with BBC, I read about you. आपने BBC के साथ काम किया है, आप कनाडा से पढ़े हैं और आप इंडिया में इस टाइम पे हैं. आपने इंडिया में एक मूवी रिलीज भी की है अभी, तो क्या है डिफरेंस, क्या होता है? You enjoy being paid abroad. That's for sure. I can. This is the most honest answer मैंने अपने पॉडकास्ट पे रिसीव किया अभी तक. Because you see, in the West, man hours are very well paid for, and of course you're even respected for the work that you do. Making is not different anywhere, because आज हिंदुस्तान के अंदर, trust me, अगर कोई हम लोग काम करते हैं इक्विपमेंट के साथ, because all filmmaking needs good equipment, as said, latest equipment. हर रोज एक कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, एडिट मशीन्स आ रही हैं. अब क्या है कि हमने जब शुरू किया था तो हमारे पास ये सॉफ्टवेयर और ये कंप्यूटर्स तो होते भी नहीं थे. वी यूज्ड टू वर्क ऑन मैनुअल लैब. ओके. तो वो चला गया. आज अगर किसी बच्चे को पूछें कि भाई डू यू नो व्हाट लिली इज, तो वो परेशान हो जाएगा. लिली क्या? अरे भाई, लिली इज जस्ट व्हाट यू डू टुडे एज कॉल्ड DI. यू नो, इट्स योर कलर करेक्शन. Okay. So we had to do that manually. Now the point is कि abroad और इंडिया में क्या फर्क है? इंडिया में और abroad में यह है कि टेक्नोलॉजी पहले वहाँ हमेशा आई. Okay. उस टेक्नोलॉजी ने आपको अच्छा प्रिपेयर किया. So for people like me who have worked abroad, have done international work in the earlier days, which of course I also was there, so that I think technically prepared me more strong. Okay. I was very well aware of किसको कैसे करना है. तो वो टेक्निकल
भी था, एंड आई लर्न टू बी ग्राउंडेड देयर ओनली, बिकॉज दैट इज व्हाट एसेंशियली इज इम्पोर्टेंट इन द इंडस्ट्री। मुझे आज भी शर्म नहीं है अगर मुझे अपने सीनियर को जाके चाय पिलानी पड़े, तो वो ग्राउंडेड लेवल जो है वो आपको वेस्ट ने सिखाया है। आज आई कैन वेरी proudly say कि India has technology even faster than it comes into US or into Europe. एक यूरोपियन फिल्म यूनिट डायरेक्टर प्रोड्यूसर कोई लेटेस्ट कैमरा खरीदने में 4 बार सोचेगा, मैं ले लूं नहीं ले लूं, बहुत महंगा है, मेरे पास अभी वो है। इंडिया में आपको वो पहुंच चुका होगा, यू नो, इट इज दैट फास्ट बिकॉज दैट इज वेयर वी आर वन अप। तो टेक्नोलॉजी की तो चिंता है नहीं, बहुत टेक्नोलॉजी बहुत है हिंदुस्तान में, एंड वी आर वेरी साउंड ऑन दैट। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है बस, वो जरूरी है। दैट इज समथिंग आई ऑलवेज वांट टू रब इन, कि वो एक्सपीरियंस को यूज करना बहुत जरूरी है, और उस एक्सपीरियंस को सही दिशा में ले जाना वो आपको एक सेट के ऊपर इंटेलिजेंट लेवल, आपकी आईक्यू लेवल ही बता सकता है। मैं ना एक क्वेश्चन पे वापस आना चाहता हूँ, और वो क्वेश्चन था जब आपने बात की थी, जब मैं आपसे पूछ रहा था कि एक न्यूबी या एक टीनेजर कोई या फिर अपनी जैसे फिल्म इंडस्ट्री में जा रहा है, मैं चाहता था कि आप ना थोड़ा उस तरफ भी डालें कि पैशन ड्रिवन तो होना चाहिए, बट देयर इज समथिंग दैट मॉनेटरी बेनिफिट्स भी होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं चूज कर रहा हूँ या फिर मुझे देखना है कि हाँ मैं पैशन ड्रिवन हूँ और पैशन के लिए मेरे को वो चीज करनी है, बट इट इज नॉट पेइंग मी, कि मेरे घर पे मतलब मेरे क्राइसिस हो जाएंगे अगर मैं आई डोंट कम फ्रॉम अ बैकअप फैमिली जहाँ पे नहीं मिल रहा मुझे सपोर्ट। व्हाट डू यू सजेस्ट? ये है इधर ऐसा कुछ? आई थिंक आई जस्ट आंसर्ड, गो बैक टू द वेस्ट इफ यू वांट मॉनेटरी गेन। हाँ, तो फिर बट लाइक यस दैट इज ट्रू। देखिए अभी क्या है कि इंडिया में वेरी अनफॉर्चुनेट चीज है कि आप टेक्निकली कितना स्ट्रांग है, आपकी नो हाउ कितनी अच्छी है, वो सेकेंडरी हो जाता है अपने आप। बिकॉज हियर यू आर डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर्स, योर फंडर्स, योर इन्वेस्टर्स, एंड इफ यू आर ट्राइंग टू मेक एड फिल्म्स एंड ऑल, देन यू आर डिपेंडेंट ऑन योर एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, योर ब्रांड मैनेजर्स एंड योर ब्रांड हु वांट टू हायर यू। सबसे अनफॉर्चुनेट चीज है हिंदुस्तान में, वो है भेड़ चाल। यहाँ भेड़ चाल चलती है, जो नाम बन गया वो बिक गया। अब ऐसे ऐसे लोग हैं, मतलब मैं आई फियर टेकिंग नेम ऑफ अ पर्सन एंड बट आई विल नॉट शाय, गुरुदत्त साहब, वन ऑफ द एस फिल्म मेकर्स दिस इंडस्ट्री हैज एवर हैड, राइट। बट गुरुदत्त साहब का सक्सेस अनफॉर्चुनेटली एक बहुत लम्हे के बाद आया, प्रॉब्ली व्हेन ही वाज डूइंग हिज लास्ट फिल्म। तो वो चीजें जो है ना, हमारे को आज भी उसके साथ जीना पड़ रहा है। तो वो भी मैंने आपको सबसे पहले कहा कि देखो, डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है इस वर्ल्ड में। अगर आप हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में हैं, काम कर रहे हैं, तो आपको सिंपल लॉजिक ये है, पैशन के साथ अपने आप को ड्राइव करो आगे, एंड यू विल बी देयर। आपका काम बोलेगा, अगर आपका काम बोलेगा तो वो ऑडियंस को पसंद आना चाहिए। अब वो ऑडियंस को कैसे पसंद आएगा, वो ये है कि आपके पास उनकी नर्व्स पकड़नी आनी चाहिए। आप उनकी नर्व्स पकड़ लें तो उनको आएगा। तो हम लोग ये चीजें नहीं करते। टेक्निकली तो हम लोगों को, बहुत लोग हैं जिनको आता है, तो शायद इतने सक्सेसफुल नहीं भी हैं। उनका सक्सेस क्यों नहीं है? शायद वो नर्व्स नहीं पकड़ पा रहे। ये है। एंड यू मेंशन दैट एज अ पॉइंट ऑफ व्यू, कि एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है दैट व्हाट एंटरटेनमेंट। That's what I always say, कि my point of view has always been good entertainment. And what is good entertainment to me? My good entertainment is कि भाई मुझसे सॉरी मूड फिल्म्स नहीं बनती। अगर मैं किसी को सिनेमा हॉल में ले जा रहा हूँ, या मैं OTT के ऊपर लोगों को जा रहा हूँ मेरी फिल्में देखें या आपकी फिल्म देखें या कुछ देखें, तो यार इतना हम लोग लाइफ में स्ट्रेस से जाते हैं, बीतते हैं। अभी तो खैर कोविड ही बहुत बड़ा स्ट्रेसफुल रीजन था सबके लिए, लेकिन अगर कोविड और नो कोविड, यू सी एवरी इंडियन families, joint families, nuclear families, we have had certain relationships which are still not very open. The relationships that we maintain here are, एक तो रिस्पेक्ट, उसके ऊपर बेस होता है। दूसरा, लोग क्या कहेंगे, इज्जत रखनी है, उसके ऊपर हो जाता है। और वो चीजें घर में अंदर स्ट्रेस कर रहे हैं, मियाँ बीवी भी लड़ रहे हैं, माँ बाप लड़ रहे हैं, बेटा बच्चे आपके लड़ रहे हैं, कोई ना कोई वजह आपको मिल रही है। तो वो कहीं ना कहीं पूरी फैमिलीज के लिए, सबके लिए स्ट्रेसफुल है। तो क्या एंटरटेनमेंट कहाँ है? तो मेरे लिए वो बहुत जरूरी है कि अगर 2 घंटे थिएटर में या एक OTT या वेब सीरीज को एंटरटेनमेंट दे, तो एंटरटेनमेंट है क्या? एंटरटेनमेंट टू मी इज प्रोडक्ट विद कंटेंट। अच्छा कंटेंट हो, मुस्कुराहट ले आए, आपको कुछ देर के लिए भूल जाएगा मेरे घर पे क्या हो रहा था, आप बाहर निकलो तो आपको खुशी महसूस होए, तो दैट इज समथिंग विच इज एंटरटेनमेंट ना। आप पैसे क्यों खर्च रहे हो? अपने घर की स्टोरी देखने जा रहे हो वापस, तो ठीक है। ओके, हाँ।
This is true. हाँ, this is true. So it's like कि मैं जो घर पे मैं भूल जाऊँ उस टाइम पे सिर्फ वही चीज मेरे लिए इम्पोर्टेंट. हाँ, that is something. दिमाग घर छोड़ के आओ यार. तुम पिक्चर देखने गए हो, उसके बाद तुम वो ऐसी पिक्चर देख रहे हो जो तुम्हारे घर में रोज स्टोरी है. तो उस फिल्म के तो हीरो हीरोइन तुम ही हो भाई. It's better कि अपना घर पे CCTV लगा के उसको दोबारा देख लो. बिल्कुल. हाँ. और ऐसे मैं ना अपने पॉडकास्ट के एंड में ना एक रैपिड फायर काइंड ऑफ थिंग करता हूँ, उसको कहता हूँ मैं लूज टॉक. अरे वेरी डेंजरस. हाँ, तो मैंने नाम भी उसका लूज टॉक रखा है. ठीक है, लूज टॉक रखा है वो ठीक है, पर मेरे को तो ये सबसे ज्यादा डेंजरस चीज होती है रैपिड. तो कीप इट ब्रीफ एंड जस्ट एक क्वेश्चन है जिसमें आपसे मेरे को जब मैं आ रहा था ना गाड़ी में मैंने कहा था यार ये तो जरूर पूछूंगा, क्योंकि मैं आपको एक पावर दे देता हूँ. जो आप कहोगे वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, कोई प्रोसेस बनाओगे वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा. आप इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में यू कैन टेक नेम्स इफ यू वांट, क्या चीज चेंज करना चाहोगे जो आपको हेल्प करे या फिर आप चाहेंगे फ्यूचर जनरेशंस को हेल्प करे? नेपोटिज्म. ओह, मैं कुछ और चेंज करना चाहूंगा तो बिकॉज़ आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव इट इज एग्जिस्टिंग. It is there. It is 100% there, and I'm saying this here on social media. Yes, we all as independent filmmakers or anyone, we need to understand कि ये nepotism हम लोगों ने तो नहीं क्रिएट किया, जिसने क्रिएट किया वो हो रहा है और चल रहा है. तो भाई अब घर बैठ जाओगे तो let us fight that nepotism. Let us prove ourselves. I know I'm an independent filmmaker. I've done my film recently. I know with what great difficulties I've done. I know what all kind of problems I have faced in doing that. I know how many obstacles came in. I know how many people, I don't want to name them, but I know there were big names who wanted to stop this film. So डर के बैठ जाता. और बहुत सारे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हैं जो बेचारे इस वजह से अपनी फिल्में नहीं बना पाते. तो नहीं यार, बनाते हैं यार, बनाएंगे, करेंगे. लेट्स फाइट दिस. नो, आई विल रोल बैक टू दिस क्वेश्चन जो मैं पूछा था कि अगर तुम्हें पैशन है ना, ऐसा पैशन है तो जरूर फिल्म इंडस्ट्री में स्टेप इन करना है. आई हेल्प यू ऑन दिस. मेरे से कोई हेल्प चाहिए मैं जरूर करूंगा ऑन दैट. अगर आप एक कुछ जिन मिलता है और आपसे जिन कहता है कि आस्क मी योर विश, व्हाट वुड दैट बी? आई वुड से भैया नितिन दे दो मेरे को. निखिल. मी? तो आप मतलब मुझे कास्ट करना चाह रहे हैं? नहीं, मैं आपको अपना जिन बना के सब जगह आगे कर दिया करूंगा. भाई जाओ सॉल्व करो प्रॉब्लम. अरे नहीं, मुझे लगा मैं नेक्स्ट मूवी में कास्ट होने वाला हूं. ऐसा नहीं है, बट ठीक है. हाँ, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही तो जिन चाहिए. हाँ, मैं मान गया, लेकिन मैं अपना बेनिफिट देख रहा था ना उसके अंदर. हाँ, तो देखो ना, फिर फाइनेंस लेके आना. ठीक है. Okay, this was our little talk on how the film industry looks behind the camera, and I had very good time with Sir Eddie Singh. Same here, thank you. Anything you want to conclude? You want to say something before to the viewers? Anything? Well, just I'm there for all the go-getters. So if you are a go-getter and you want to come into the industry, you can shoot me a mail, you can call me, hunt me out. I'm there always because I support what I said. Okay, what I'm gonna do is, as you've seen, यहाँ pop up हो रहा था सर के IG handles और everything is in the description. You can reach him. I'll leave the phone number as well if they want to contact, or email address at the work email if you want to contact, or any agency, anything want to contact. Email is better. Don't email. give the number. Then you get a lot of prank calls. I'm sorry. No, this is true. This is true. Okay, we're gonna wrap this up, guys. Thank you so much, sir, for joining us. I bow down to you for giving us time. Thank you so much. It was lovely. It was lovely meeting you guys, and thank you for interacting here with us. Thank you so much. This is one of the team creators, guys, and everything is down below. Just have a look. See you in the next video, ladies and gentlemen. Adios.